All right. So students who have just started to prepare, and students who are doing it for the very first time, and like I'm saying, this is not only for my subject, it can be for other GS subjects also, right? So your preparation, always remember, like आपने I think personally भी जब आप enroll कर रहे थे, मैंने आपको कई बार बोला था कि go through the syllabus, right? So it's very very important that you memorize. I am using the word memorize. आई एम नॉट इवन सेइंग कि आपको सिर्फ एक बुकलेट आपके पास होनी चाहिए या व्हाट्सोएवर. आई एम सिंपली सेइंग कि यू हैव टू मेमोराइज योर syllabus, be it your mains, be it your prelims, be it your optionals, anything, because it has to be in your, you could say, fingertips. आप कभी भी, क्यों मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ये मेमोराइज करना है, why you have to memorize by heart. I'm not saying you have to paste it somewhere or you have to keep it somewhere या आपने बुक खरीद लिया है syllabus की and that's enough. Why I'm saying you have to memorize is because, see, a very simple example. आप newspaper, you going to read the newspaper, right? And newspaper में, if you're not sure that what material you have to see, what is the keyword that has been given, you will not be able to, in a very integrated manner, you will not be able to use the content in the newspaper, right? Same for anything. अब आप पेपर एनालिसिस करते हैं, आप बुक्स पढ़ रहे हैं, you are reading your subject book. If you do not remember the syllabus by heart, you will not be able to filter out the information, or you will not be able to filter out the important aspect of the content. That is the reason why I'm saying you have to memorize. Like I'm saying again, whether it is your prelims, whether it is your GS paper or optional paper, this activity is very very useful. एंड नंबर वन थिंग इज, प्लीज जो रिसोर्स, सॉरी, जो सोर्स आपका यूपीएससी का है, सो फ्रॉम द मेन वेबसाइट इटसेल्फ, take out the printout or download it and keep it with you. Do not rely on the books, या फिर कुछ बहुत सारी बुक्स होती हैं जिसपे ऑलरेडी प्रिंटेड रहता है. आई एम नॉट सेइंग दे आर रॉन्ग, बट इट कैन बी कुछ एरर हो, कोई रिवीजन हो, कभी हो सकता है यूपीएससी ने कुछ रिवीजन कर दिया है एंड वी आर नॉट अवेयर ऑफ, या हमने ऑनलाइन देख लिया है एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो जहाँ पे आपको पता है कि यू आर गेटिंग द राइट सोर्स फ्रॉम द पीपल हु आर कंडक्टिंग दिस एग्जामिनेशन, it's better that you follow that. This is for UPSC, this is for any state exam if you're going for that, right? So memorize the syllabus by heart, paste it somewhere कि आपको constantly दिखे. Every time you see those keywords in the units, or you're going to see um, the important key terms, ये आपको help करेंगे जब आप उसको जब आप कंटेंट देखते हो, जब आप बुक पढ़ रहे हो, या आप सिलेबस देखते हो, या आप क्वेश्चन पेपर जब आप पढ़ते हो, तो you skim through that and you are able to filter out a lot of important information, right? So this is why the number one key step starts with syllabus. Even if you have not studied anything, but start with the syllabus first, right? Number two activity which you can do right now, so within the first week I encourage students to do this activity, is your previous year question paper, especially 4 to 5 years, क्योंकि उससे पहले का थोड़ा सा फिर पैटर्न क्या है, चेंज होने लगता है. सो एटलीस्ट 4 to 5 years या मैक्सिमम आप 6 7 years के लिए देख सकते हो. सी द पैटर्न्स. आपने सिलेबस देख लिया, ठीक है, सिलेबस देखने के बाद जस्ट स्किम थ्रू द क्वेश्चंस. यू विल, of course it's not going to take just one attempt, you have to keep on seeing the paper questions many a times, and then you will realize कि कुछ एक पैटर्न निकल कर आएगा. मे बी सम क्वेश्चन, सम टॉपिक जो है वो बार बार आ रहा है, ठीक है, कुछ ऐसे की यूनिट्स हैं, की वर्ड्स हैं जिसका रेपिटेशन हो रहा है बार बार, राइट? सम पैटर्न इन द सेंस कि कंपैरेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं या प्रोज एंड कॉन्स बार बार पूछ रहे हैं. फॉर एग्जांपल, वन ऑफ द क्वेश्चन व्हिच इज why psychology is considered a scientific, you could say why it's called a science. ये क्वेश्चन आप देखोगे ट्विस्ट करके हर बार वो पूछते हैं, right? So this way you are going to identify a lot of things which are, you could say, going to be very useful जब आप फाइनली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे. तो जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, आपको ऑलरेडी बैक इन द माइंड रहेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, आई नीड टू राइट दिस इन माई नोट्स, और आई नीड टू हैव अ टेम्पलेट आंसर फॉर दिस, right? So this is the reason why I constantly say कि syllabus is very important,
And secondly, previous year question paper analysis is very important. I'm not saying कि बस questions देख लिया हो गया. Analysis, maybe write it down somewhere that these are some of the important questions जो हर unit में आप देख रहे हो कि every year there is a question which is coming up. Yeah, there is some connection, there is some pattern which is coming up, right? So go through that, right? Next is, I would obviously encourage, please read the ncrts. It's very very important that you go through the ncrts. Why? Because first of all, some of you are just starting this subject, it's a very new subject for you, and psychology 11 12 में introduce होती है. So the language is such that you will be able to grasp it in a easier format. ठीक है. Another thing is, there are so many questions जहाँ पे बहुत direct questions आए हैं. I'm not saying कि NCERT content is enough, but sometimes maybe you don't know the answer, but you know कि ये NCERT में कुछ portion इसका given था, या maybe some lines in the NCERT are making a lot of sense that you want to include in your answer, right? So for that purposes, I encourage you to please go through the NCRTs. It will hardly take a week to complete both the sets. इतनी कोई मोटी book है नहीं, 9 chapters ही हैं. So please complete. And अगर आपने syllabus देखा है ध्यान से, which I'm sure you must have, so syllabus के जो paper 1 के mostly जितने जो topics थे वो आपको NCRTs में दिख जाएंगे, right? So go through the NCRT. Or what you can do is quickly complete the NCRT and then start with a good standard book. ठीक है. तो वो आपका एक रिवीजन जैसा भी हो जाएगा. जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी बार आपको वो और कॉन्क्रीट होते जाएगा इन योर हेड that this is what this topic means, or this topic is coming again and again, so I have to focus, or you have to make your notes from here, or that this question has been asked from this unit, so I have to revise it properly, right? प्लीज ऑलवेज कीप अ पेंसिल मार्कर जो भी है उसको प्लीज अंडरलाइन करो, मार्क करो. मेक बेस्ट यूज ऑफ दीज थिंग्स, राइट? Now repeat previous year question paper exercise. Once you have read the NCRTs, अभी जैसे आप पढ़ोगे या आपने पढ़ ली है already, you have already had this analysis. Go back to the previous year question paper, right? And now you will definitely see कि you are able to at least have an idea कि okay, this question from here you can write something, और this question इसका आंसर यहाँ पे मुझे इस यूनिट में मिलेगा. So this is the reason why I encourage students to first see the syllabus, then go through the previous year question paper, then NCRTs, and then going back to the previous year pattern. I mean previous year question paper exercise. Right? So this gives you a very holistic idea that these are some of the important stuff that I have to go about. See, and इसमें से majority आपको कितना आ रहा है समझ में, कितना नहीं आ रहा है, एक rough idea आपको आ जाएगा, right? Then start your standard books, your advanced books. See some of the books, standard book किसको बोलती हूँ मैं, जो आपका एक नॉर्मल टेक्स्ट बुक होगा जिसको आप थ्रू आउट यूज करने वाले हो. फॉर एग्जाम्पल जो आपका पेपर 1 है, पेपर 2 है, सो फॉर पेपर 1 सिसरेली, बैरन, देयर आर सो मेनी बुक्स. जनरल साइकोलॉजी का जो आपका बुक है, दैट इज योर स्टैंडर्ड बुक. ओके, इवन योर एनसीईआरटी यू वुड से, आई वुड नॉट से इट्स अ स्टैंडर्ड बुक, बट चलो ठीक है. देन एडवांस बुक क्या होता है? एडवांस बुक का मतलब है कुछ यूनिट्स आप देखोगे that even Cicerelli Barron or the general psychology book is not doing any justice. You're not going to get any content. So for example, for research methods, for statistics, you're not going to find any topic, right? So for that purpose, what I'm going to provide you is some advanced book जो आपका specialize करता है उसी topic के लिए. So for research, there's going to be a book. For statistics, there's going to be a book. Right? For paper 2, some topics मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं हो पाएगा. Usually सब स्मारक स्वयं कहते हैं, but the problem with स्मारक स्वयं is, of course, it's a good book. It will have all the units and everything, but it's a very old edition. Right? There's no revision whatsoever, and since paper 2 is very very dynamic in nature, so you want to have something which is more holistic and more refreshing and so for some units, for example human development का unit है, या some of you are preparing for state services, तो उसमें biology का section आ जाता है. Then in your paper 2 there is also this disorders का एक chapter है, तो उसके लिए these standard books are not making a lot of sense, or it's very very little material. So I would give you some extra advanced books. ये आपका choice है whether you read it in the PDF format या आप chapters का print out निकाल दीजिए. I'll give you the chapters also, because you're going to get a very good content out of it, right? And I think those are better content in terms of
quality, value addition, so on and so forth. See, what is the problem I think these days with psychology option, जो मुझे समझ में आया है, a lot of the students also have talked about it. Um, because the material is limited, I mean the resources who is teaching psychology option is so limited. द मटेरियल इतना ज्यादा उसको मतलब थोक में मिल रहा है हर जगह, यू नो, इन द मार्केट, ऑल द नोट्स, एवरीथिंग, एवरीबडी इज रीडिंग द सेम मटेरियल, तो हमारा आंसर कैसे अलग होगा, हमारा वैल्यू एडिशन कैसे होगा, या हमारा वे ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन, या जो हमारा वर्ड है, लैंग्वेज है, वो कैसे डिफरेंट रहेगा. If I'm following the same thing, let's just say there are 100 students who have taken psychology and everybody is studying from the same source. So this is also another reason why I add different books. I know Barron's is really बहुत common है, स्मारक स्वयं भी है, and then there's AK Singh for starts. I'm not denying the utility of this book. अगर आपको language comfortable लगती है, see it's all about the language. If you feel the language is easy for you, you are able to understand in a nice manner, please go with this book. I will never say कि आप मेरी book मतलब जो मैं आपको suggest करूँगी वही book use करिए. Why? Because if you're not understanding the language, obviously it's useless for you, right? But yes, for some units, I'm going to suggest you some books which are not these books, and I think they will really help you in understanding, because these books are specially for example research, qualitative quantitative का research कैसे करना है, या stats का कुछ portion है. बहुत सारे time मैंने देखा है students are not able to understand ANOVA, score and so on and so forth. तो उस purpose के लिए I have added that, right? So the next thing is, when you're doing this, try to identify your weak and your strong area. ठीक है, पेपर वन के लिए भी पेपर टू के लिए, यू विल रियलाइज इवेंचुअली दैट सम ऑफ द, यूजुअली मैंने देखा है स्टैट्स, राइट, और रिसर्च वन, राइट. तो कुछ एरियाज मैंने देखा है स्टूडेंट्स दे जस्ट फील वेरी नर्वस, दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल, and that's completely normal. It can't be that, you know, from 1 to 28th unit you will know everything. कुछ तो यूनिट होगा ही जो आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है. एंड देन ऑफ कोर्स फाइंड योर स्ट्रॉन्ग एरियाज आल्सो. तो स्ट्रॉन्ग को हमें स्ट्रॉन्गर करना है, और वीक को हमें इस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है कि इफ देयर इज अ क्वेश्चन आई एम एटलीस्ट एबल टू राइट सम टेम्पलेट आंसर इन दैट. सो डू नॉट ट्राई टू स्किप द क्वेश्चन. जब भी, आई नो you have a choice and everything, but please attempt all the questions, right? तो हमें और polishing करनी है, so and so forth, but try to identify these strong and weak areas, because revision के time पे आपको ये weak areas को और अच्छे से revise करना है, and strong area को आपको और stronger करना है, right? So day one से keep these activities in your mind, which are very helpful. Not again I'm saying, for if you can apply this in your main बाकी GS का भी जो आपका पेपर है उसमें भी आप अप्लाई करके देख सकते हो. नेक्स्ट, द रोल ऑफ न्यूज़पेपर इज मोस्टली इन पेपर टू. दो ऑफ कोर्स कभी कोई आर्टिकल आता है, एनीथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू साइकोलॉजी और एनी करंट सिचुएशन विच आई थिंक which maybe you have pointed out somewhere, we can have a discussion on it, and you can of course include in the answers. So try to always जो भी आप पढ़ रहे हो, whatever content that you're reading, whatever you are understanding, try to relate it to your current environment. So for example, like the COVID happened, so how was there a psychological effect? It was a pandemic, it was a global phenomena that was happening, so how it affected the entire thing. So it can be the education, it can be the policies, it can be our mental health, उसके बाद क्या changes आए. So try to always relate these things, and you will definitely see paper 2 में इसका बहुत ज़्यादा application है, because questions भी ऐसे ही आते हैं कि इस situation में आप कैसे help करते हैं, how can we see the effectiveness of so and so forth, so and so forth, right? So paper 1 is mostly very dynamic in paper 1 is very static in nature. ठीक है, पेपर वन मोस्टली थ्योरेटिकल है, यू आर अंडरस्टैंडिंग दी कॉन्सेप्ट्स, एक एक फाउंडेशन हम बिल्ड कर रहे हैं कि हर एक यूनिट में कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे थ्योरीज हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कहाँ से इवॉल्व हुआ साइकोलॉजी, व्हाट मेथड्स आर वी यूजिंग टू स्टडी द माइंड, हाउ आर वी इवॉल्विंग दैट, एंड देन उसका एप्लीकेशन आप देखोगे पेपर टू में, इट्स मोर एन एप्लीकेशन बेस्ड पेपर, पेपर टू, ठीक है, जहाँ पे वी आर अंडरस्टैंडिंग कि whatever theory that we have understood about psychology, how can we now apply it to the real world, right? So education में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, rehab में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं,
अगर देर इज कास्ट प्रॉब्लम, देर इज डिसएडवांटेज ग्रुप प्रॉब्लम, तो उसमें हम कैसे, हाउ कैन वी यूज द मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी और हाउ कैन वी use the theories of psychology to solve these current related issues, or how can we study the impact of something. So this is why research is very very important. So ये दोनों ही पेपर you have to keep in mind that paper one is static and paper two is very dynamic in nature. So only sticking to books is not sufficient. You have to read the newspapers. So newspaper तो आप वैसे ही read कर रहे हो, and उसको थोड़ा थोड़ा inculcate करो in your own language that how you can connect psychology with that, right? So इसका कोई ऐसे magazine नहीं है special. There is no psychology magazine that you have to study. It is simply newspapers, right, that you have to going to see. एंड ऑफ कोर्स कुछ भी ऐसा आर्टिकल आता है, कोई स्टडी आती है, कभी कभी लाइंसेस की कोई स्टडी आ गई या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन में देर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज पॉपिंग अप. So I'm going to share it, and you are also more than welcome to share such clippings with us, because as a group we are working towards in a very holistic manner. So कुछ आपको भी लगता है, कुछ डिस्कशन करने की नीड है, and so forth, you can please write it in the group, right? So these were some of the key points. Now let me just quickly some other aspects which are there. I hope you're noting any doubts, anything that you have in mind, so we can just have a discussion on that. All right. So preparation में कितना time लगेगा, कैसे करना है, this I'm going to discuss quickly, and then I am going to take up your doubts and we can have a talk. ठीक है? Okay. Number one is please have a very holistic strategy for preparation. See, lot of times students come, what they do, and ये बहुत सारे जो नया नया अभी start करते हैं preparation करना, what they do, एक unit complete किया या एक chapter किया, उसका एक question उठा के they start writing the answer. Please don't do that. See, what will happen is जब आप eventually देखोगे three months के span में, when we have completed at least entire paper one का unit हमने कर लिया है, and जब हम paper two पे jump करते हैं, आप देखोगे you have an in-depth knowledge of all the topics. So you have an understanding about all the cognitive abilities, learning, memory, problem solving. You understand human development. You also know what is research and how can we do the application of it. You understand why psychology is very scientific. तो आप ये समझो कि अगर आपने सिर्फ एक यूनिट पढ़ा है, let's just say you start with unit number 1. It's very easy. हर बुक में सबसे पहला चैप्टर वही है, सारे टॉपिक उसमें गिवन है, ठीक है? Now you start doing the answer writing. You will really see the difference, a person who has started answer writing that way versus a person who have wrote the answer after completion of paper 1, because now you have a holistic understanding of so many topic and you can combine the ideas, you can combine the theories and then give a very comprehensive answer. अगर आपने एक ही यूनिट करा है उसके बेसिस में आंसर किया, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी लिमिटेड. आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट कि आपका जो कंटेंट है वो वैसे ही छोटा हो गया, ठीक है? बट लेट्स जस्ट से कि मैंने सब कुछ होलिस्टिकली पढ़ा है एंड नाउ अब कोई मेरे पास क्वेश्चन आता है, देन आई कैन राइट इन अ वेरी होलिस्टिक मैनर. आई कैन कंबाइन द थ्योरीज, आई कैन गिव द एग्जांपल्स इन अ प्रॉपर मैनर. कुछ करंट चल रहा है तो वो मैं ऐड कर सकती हूँ. वो तभी आएगा जब आपकी होलिस्टिक प्रिपरेशन होगी. इसीलिए मैं थोड़ा स्टार्टिंग में रिफ्रेन करती हूँ स्टूडेंट्स को कि एकदम से मत लिखना. अनदर साइकोलॉजिकल रीजन फॉर दिस इज you're going to write and it's not going to be very good answer. I'm not discouraging you, of course you can give it to me for evaluation, but let's just say ki most cases what I have seen is the answer is not very up to the mark, and let's just say out of 15 I just give you 3 or 4 marks out of it. तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस और नीचे जाएगा एंड देन यू फील कि ओ माय गॉड मुझसे तो हो ही नहीं रहा है, आई एम नॉट एबल टू डू इट, लेट्स मी जस्ट चेंज द ऑप्शनल, या मुझे समझ ही नहीं आ रही. द प्रॉब्लम इज नॉट दैट मुझे समझ में नहीं आ रहा है या मुझसे होगा नहीं. द प्रॉब्लम इज इट्स टू अर्ली फॉर यू टू start the answer writing work, right? So this few months is very important कि आप पहले अपना बेस तैयार करें, आप अपना फाउंडेशन तैयार करें, so that you can do the answer writing at the right time, right? So right time is very very important. It's like there is a concept in bio also. Yeah, so there is a concept in bio also. This is critical period, sensitive period, critical period. आपने उसमें भी देखा होगा, units में भी देखा होगा.
सो लेट्स जस्ट इट्स अ न्यू बॉर्न बेबी, एंड अगर आप उसको डे वन से ही वॉक करना स्टार्ट करा दोगे, आई होप यू कैन इमेजिन दैट इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डेंजरस फॉर द चाइल्ड. You're going to weaken the bones, you're going to weaken the muscles, and it might be the child is not able to walk properly eventually, right? So एक टाइम पीरियड होता है. ओहो, आई होप इट्स क्लियर नाउ. सो एक टाइम पीरियड होता है, फॉर एग्जाम्पल कि 9 से 11th 12th मंथ में जब बच्चा स्टार्ट करता है वॉक करना, that is the right time that you help the child to start walking. You can give massage, you can help the child to walk, and it is true for any individual. It is not only for walking, it is for talking also, it is for anything, राइट? तो अगर आप उसको प्रीमेच्योरली स्टार्ट करा दोगे कोई भी चीज, सो ऑफ कोर्स इट्स नॉट गोइंग टू टेक इट्स फुल कोर्स. सो सेम इज ऑल्सो विद योर प्रिपरेशन. अगर आप प्रीमेच्योरली आंसर राइटिंग स्टार्ट कर लोगे, you are not going to get a very quality answer, and it can shatter your confidence, and then eventually you're going to lose interest in this subject. See, for 4 to 5 months or 6 months, वैसे तो द एंटायर ईयर यू हैव टू लिव विद दिस सब्जेक्ट, यू हैव टू ब्रीथ विद दिस सब्जेक्ट. ठीक है, दिन रात उठते बैठते सोते जागते यू हैव टू प्रिपेयर दिस सब्जेक्ट. तो अगर पहले से ही आपका कॉन्फिडेंस लो, उससे क्या होगा, आपका मोटिवेशन कम हो जाएगा. मोटिवेशन कम होगा तो वैसे ही आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा. सो यू हैव टू गो वेर इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर, राइट? और अगर अब आप जो देखोगे, जो पैटर्न आजकल स्टार्ट हो गया है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं where they have combined paper 1 and paper 2 together. So now you have to prepare holistically, especially जो पेपर 2 का, पेपर 1 का यूनिट 2 एंड 3 है, रिसर्च एंड स्टैट्स का जो पोर्शन है पूरा, एंड जो पेपर 1 का जो फर्स्ट यूनिट है, कई बार मैंने देखा है कि क्वेश्चंस दे कंबाइन टुगेदर, सो दे राइट क्वेश्चंस इन अ वेरी इंटीग्रेटेड मैनर, एंड योर आंसर शुड आल्सो बी इन अ वेरी इंटीग्रेटेड मैनर. So for that is again the reason why you have to do it in a very holistic manner. So as of now, for the newbies, newcomers, new beginners, don't start with the answer writing right away. ठीक है, पहले थोड़ा सा बेसिस कर लो, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ले लो, व्हाट इज साइकोलॉजी, सो एंड सो फोर्थ. if you already have understanding, if you are a person who has done post graduation in this subject, या अगर आप ऑलरेडी एक साल से प्रिपेयर कर रहे हो, देन ऑफ कोर्स यू मोर देन वेलकम टू गिव मी योर आंसर्स फॉर evaluation. आई डोंट माइंड दैट. ठीक है, ऑलराइट. नाउ ईच यूनिट इज important. when we see the questions, at least हर एक यूनिट से हार्डली कोई एक या दो यूनिट होगा जिससे क्वेश्चन नहीं आता है, बट हर एक यूनिट से एटलीस्ट एक क्वेश्चन जरूर आता है. सो दे वी आर इन नो पोजिशन टू स्किप एनी यूनिट. आई वॉन्ट टू प्रिपेयर यू इन सच अ मैनर कि मे बी वी डोंट हैव अ कंटेंट, वी डोंट नो द आंसर, बट वहाँ एग्जामिनेशन में आप कुछ तो लिख पाओ उस टॉपिक पे. तो आपको एक वेग आइडिया होना चाहिए. सी एटलीस्ट आई एम नॉट सेइंग कि 10 on 10 आ जाएगा, बट उस टॉपिक में जो आपको नहीं पता, कम से कम 4-5 नंबर तो आ जाएंगे. ऑलवेज रिमेंबर, अ पर्सन अटेम्प्टिंग आउट ऑफ 25 ही इज अटेम्प्ट 5 questions, एंड 5 उसने बहुत अच्छे किए हैं, ही इज गेटिंग 10 on 10 on that or 100 on 100 on that. But a person who have attempted all 25 questions, just giving an example, a person who have attempted all 25 questions and maybe उसके आंसर एवरेज हैं, बट अगर आप मैथ्स लगाओ तो person who has attempted 25 questions will get more marks. I hope I'm making sense, right? And एक वो थोड़ा हो जाता है कि the examiner gets to know, it's a psyche of the examiner that okay, this person has an idea, a good idea, fair idea what is psychology actually. ठीक है, सो डोंट स्ट्राइव फॉर कि हर एक आंसर परफेक्ट होना चाहिए. एवरेज आंसर्स भी चलेंगे, बट एज लॉन्ग एज यू आर अटेम्प्टिंग ऑल, एंड आई एम नॉट सेइंग कि आपके सारे आंसर एवरेज होंगे, राइट? ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एक्सरसाइज विल हेल्प यू ओवर हियर. Okay, now expect 2 to 3 questions from research methods. Though of course choice होती है, but you can definitely expect questions. And usually research methods के जो topics हैं, it is combined with paper 1, paper 2 के जो first unit है, ठीक है, measurement वाला and so on and so forth. So, and what are the kinds of question you can expect, especially for research, because वो थोड़ा सा different हो जाता है. एक तो कंपैरेटिव क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सर्वे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्वे एंड क्वेश्चनर, व्हाट इज क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव. तो एक डिफरेंस वाला, कंपैरिजन वाला एक टाइप का क्वेश्चन आ सकता है. प्रोज एंड कॉन्स आते हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, व्हाई दिस मेथड इज बेटर देन द नेक्स्ट मेथड, सो एंड सो फोर्थ. assumptions बहुत कॉमन है, usually you will see questions coming for assumptions. what is the assumption of ANOVA, what is the assumption of t test, what is the assumption of
IRT, so and so forth. तो assumption के patterns आप देखोगे, and that is why when I teach you the topic, I'll give more emphasis on कि इसके क्या set of assumptions हैं. And that's a very, I'm saying it's a very direct question. क्यों direct? क्योंकि आपको सिर्फ assumptions, let's just say there is ANOVA. So you need to know what is ANOVA. You need to know the application of ANOVA कि हम कहाँ use करते हैं. You need to know some 3 or 4 assumptions which are there, and you need to know what are the pros and cons. Usually the question will revolve around this only. And assumptions इतने easy होते हैं कि 3-4 आपने points लिख दिए and it's good to go for you, right? So I have made my PPTs in such a manner कि आप वहां से अपना कंटेंट बना लो, है ना? देन important units to question on average आप देखोगे आएगा ही आएगा, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन ऑन एवरेज, स्पेशली यूनिट 4 to 11 से आप देखोगे पेपर 1 का काफी ज्यादा टॉपिक्स हैं जो फॉर एग्जांपल लर्निंग हो गया, मेमोरी हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, वो आपका वहां से आ रहा है। ये सारा टॉपिक आपका कॉग्निटिव साइकोलॉजी का है और ये बहुत एनसीईआरटी में भी दे रखा है, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ एनसीईआरटी तो मत ही स्किप करना, कई बार आपको उसी से बहुत अच्छा आंसर मिल जाता है, ठीक है? रोल ऑफ एनसीईआरटी लाइक आई एम सेइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. One thing I would like to say over here, I don't mind internet. आप यूज करिए इंटरनेट, दिस इज व्हाई वी हैव द होल फैसिलिटी. प्लीज डोंट गो फॉर विकीपीडिया. ये जो पेज पे सबसे पहला जो भी आ जाता है ना, विकीपीडिया आ गया या वो वेरी हेल्दी माइंड, आई थिंक देयर और 2 or 3 पेजेस जो इमीडिएटली आप क्लिक करते हो उस पर सबसे पहले वो कंटेंट आते हैं, especially Wikipedia. Please don't follow Wikipedia. Please, Wikipedia is something which is editable, and a lot of times there's information which is not accurate or that is not making sense. And जब आप अपना आंसर वहां से लिखते हो ना, एक तो वो रिफ्लेक्ट होता है कि आपने नेट से उठा के लिखा है, सेकेंडली वो इनएक्यूरेट भी हो सकता है. सो डोंट गो फॉर दैट. प्लीज स्टिक टू द बुक्स, प्लीज स्टिक टू द राइट कंटेंट, ठीक है? कुछ हाँ डायग्राम देखने के लिए, कोई थ्योरी बिल्कुल नहीं समझ आ रही है उसके लिए go for it. See, sometimes see content writing कैसे होती है, especially for websites like these, ये very healthy mind and very well mind जो भी. So there is a person who has done some degree, sometimes they have not even done a degree, and they are given the content कि आपको इतने words का ये content लिखना है. वो भी अपनी सर्च करते हैं इंटरनेट से, कहीं कहीं से जोड़ तोड़ के वो भी लिख देते हैं. तो अब वो इतना एक्यूरेट नहीं है बिकॉज दे माइट चेंज द लैंग्वेज, दे माइट चेंज द वर्डिंग, एंड उससे पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है, राइट? आई हैव बीन चेकिंग फ्यू आंसर्स, एंड मैंने कई बार ये चीज नोटिस की है कि बच्चे ऐसे ब्लाइंडली कॉपी कर लेते हैं, एंड इट विल रियली कट योर मार्क्स. इट विल नॉट रियली फेच यू अ लॉट ऑफ मार्क्स, इट विल कट योर मार्क्स. सो प्लीज स्टिक टू योर बुक्स फर्स्ट. फिर उसके बाद अगर कोई चीज आपको लगती है कि नहीं समझ में आ रही है या कुछ है, न्यूज़पेपर्स इज सेकंड गुड रिसोर्स, ठीक है? बट इंटरनेट में थोड़ा सा इस वे में आपको अवॉइड करना चाहती हूँ, ठीक है? ओके. Okay. Eventually we will also of course see कि some of the times you will see questions जो बहुत in depth हैं, जो बहुत रेयरली आते हैं, तो उनको कैसे हम आंसर करेंगे, ठीक है? वो हम आंसर राइटिंग में आपको सिखाएंगे. बट अगेन आई एम सेइंग, आप जब साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हो, इट डज नॉट हैव टू बी अ वेरी इन डेप्थ स्टडी. यू डोंट हैव टू डू ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन. आपको सिर्फ इतना आना चाहिए that you are able to write the answers, ठीक है? You are able to understand the question and you are able to write the answer. This should be your approach, not only for my subject, for political science, for history, for anything. आपको इतना in depth में नहीं जाना है. First of all, you don't have the time for it, ठीक है? Second of all, इतना टाइम आपके पास वहाँ एग्जामिनेशन में ही नहीं होगा कि आप इतना उसमें कंटेंट लिख सको, right? Just imagine the frame of mind during the examination. Per question you will get 6 to 8 7 minutes. That's it to read the question, to understand the demand of the question, and to jot down your points in your mind and to write. तो आपके पास इतना ही टाइम है पर क्वेश्चन का, और उसमें से कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, तो कैन रियली इमेजिन द मैथ्स ओवर हियर, राइट? सो फॉर दैट पर्पसेस कीप द कंटेंट लिमिटेड एंड राइट रिवाइज, दैट्स इट. बहुत ज्यादा इधर उधर से मत ढूंढ ढूंढ के लिखना, बिकॉज अभी मैं अपना भी पीपीटी दूंगी, अपना भी रिसोर्सेज दूंगी, बुक आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो, बस इससे ज्यादा और अगर आप एड ऑन करेंगे यू जस्ट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम. हमें बाय हुक एंड बाय क्रुक दिसंबर तक ये कंप्लीट करना है विद प्रॉपर रिवीजन, ठीक है?
सो जब आपको कुछ क्वेश्चंस ऑफ कोर्स ऐसे होंगे जो नहीं पता, जो ये बुक में भी नहीं मेंशन्ड है, सी वो ट्रिक क्वेश्चंस होते हैं. वन ऑफ द क्वेश्चन आई विल टेल यू व्हिच वन वाज इट. इट वाज अ क्वेश्चन ऑन Rorschach कि हाउ डू क्लिनिशियंस डू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द इनबोर्न टेस्ट. है ना, ये क्वेश्चन आया था, 2020 का टेस्ट है ये, क्वेश्चन पेपर है ये. नाउ students are doing the answer writing and they are writing everything from the internet. First of all, it's so in depth. When a person does expert level training, तब उनको बताया जाता है कि क्लिनिशियन जो है वो कैसे करते हैं एनालिसिस. Okay, I'm a qualified psychologist, so I know कि मुझे कैसे, I mean I know how to practice that text. So for that purpose I have the book of interpretation, so I know कि वो interpretations कैसे होती हैं. But for a layman to know this much in depth knowledge, वो भी half ही रहती है इंटरनेट पे. क्यों? Because it's a very what do you say, it's a very expensive test. जो इन ब्लॉक टेस्ट है Rorschach का, it's for 15-20,000 rupees, right? सो उसका जो मैनुअल है वो आपको वैसे इंटरनेट पे नहीं मिलेगा कि वो कैसे होती है, वो हमें करनी भी नहीं है. बट हाँ, आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए. नाउ इफ यू जस्ट सी योर एनसीईआरटी, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल व्हाई एनसीईआरटी समटाइम्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आपको कोई आइडिया नहीं है बट एनसीईआरटी जब आप खोलते हो तो उसमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ये Rorschach ने दिया था, उसकी इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, कितने उसमें प्ले कार्ड्स हैं, ठीक है, वेग है, एम्बिगुअस है, अनस्ट्रक्चर्ड है, सो एंड सो फोर्थ, और हम थोड़ा बहुत उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं. एंड सम एग्जांपल व्हाइल टीचिंग यू आई विल आल्सो गिव यू कि उसका जो लोग रिस्पॉन्सेज देते हैं हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, right? So this is how sometimes you have to mold the answer or you have to manipulate the content that you have. कंटेंट उतना ही रहेगा सबके लिए, नॉट जस्ट फॉर यू कि आपने कम पढ़ा है, फॉर एवरीबडी इज गोइंग टू बी द सेम कंटेंट. सो डोंट गो इनटू दिस कि मुझे ईच एंड एवरी यूनिट का मुझे बहुत डिटेल में करना है, तो फिर तो आपका ऑप्शन प्रिपेयर हो ही नहीं पाएगा, राइट? सो यू आर गोइंग टू गेट दीज क्वेश्चन, दीज आर जस्ट ट्रिकी क्वेश्चन. जब एक क्वेश्चन रेडी होता है, वी आर गोइंग टू सी कि हाउ डू वी प्रिपेयर अ टेस्ट, हाउ डू वी प्रिपेयर अ क्वेश्चन है. सो देर इज समथिंग कॉल्ड अ स्पीड टेस्ट एंड देन देर इज समथिंग कॉल्ड अ पावर टेस्ट, ठीक है? तो क्वेश्चन आपकी सेट ही इस हिसाब से होते हैं कि सम क्वेश्चंस आर वेरी इजी, सम आर वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड सम आर मीडियम. तो कुछ तो डिफिकल्ट वो डालेंगे ही जानबूझ के कि आप थोड़ा सा परेशान हो. तो आपको उसमें परेशान नहीं होता, उस समय जो आपको कंटेंट आपको लगता है उससे रिलेटेड है, ट्राई टू आंसर दैट. ओके. Now, conceptual clarity is very important. That will come only when you have limited content and you do a lot of revision. Please do not skip the role of revision. When I say revision, it should be in your tips. तो कोई ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कोई क्वेश्चन दिया तो आप पहले बुक से पढ़ रहे हो फिर यू आर राइटिंग द आंसर. इट्स अ स्टूपिड एक्टिविटी आई वुड से. आपको इतना होना चाहिए that if I ask you what is psychology and what is the evolution of psychology, you are able to give me in tips and you are able to write an answer. This is what is revision and this is why I encourage student कि जब content हो जाए उसके बाद answer writing start करें. So please revise weekly, 15 months, पूरा एक महीने का, 2 महीने का, ऐसे करके रिविजन करो so that by the month end, मतलब जब आपका 6th month होगा या 5th month होगा, you actually remember it. एंड ये आपको रिवाइज करते रहना है टिल यू क्लियर योर प्रीलिम्स, बिकॉज प्रीलिम्स के बाद यू विल नॉट गेट टाइम फॉर कि आप अब वापस से आपने स्टार्ट करना, लर्न करना स्टार्ट किया. नो, प्रीलिम्स के बाद द 3 months दैट वी हैव, इट इज प्योरली फॉर आंसर राइटिंग एंड रिविजन. दैट्स इट. थोड़ा बहुत जो आपका एथिक्स का छूट गया, दैट्स इट. और ऐसे तो वो आपको उस समय करना है. तो प्लीज कीप योर ईयर प्लान दिस मैनर, ठीक है? चाहे वो पॉल साइंस है, हिस्ट्री है, कुछ भी है, इट शुड गो इन दैट मैनर. प्रीलिम्स के बाद बिल्कुल टाइम नहीं होगा. आपको 1-2 दिन का ब्रेक मिलेगा, उसके बाद से आपको वापस से बस टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी होती है या आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करनी होती है. सो वो तो तभी होगा ना जब आपके मन में कंटेंट है, ऑलरेडी आपके दिमाग में है स्टोर्ड. तो अगर वो होगा ही नहीं तो यू गोइंग टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम. So role of revision is very important. When I say revision, so at least 4 or 5 revisions of each subject that you're preparing. ठीक है? Okay. हाउ टू फेच मोर मार्क्स, आपके आंसर्स कैसे होने चाहिए, या आप जब अभी नोट्स लिखना स्टार्ट करोगे, व्हाई आई एम सेइंग राइटिंग दिस ओवर हियर इज, जब आप अपना नोट्स लिखना स्टार्ट करोगे, ऑलवेज ट्राई टू कीप गुड कीवर्ड्स. अच्छे कीवर्ड्स होने चाहिए, कुछ अच्छी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होने चाहिए, राइट? देन इट शुड बी इंटीग्रेटेड टॉपिक्स होने चाहिए, फ्लो चार्ट्स, फिगर्स, डायग्राम्स, रिसर्च. रिसर्च हम कैसे कोट करते हैं, लेट्स जस्ट से आई हैव गिवन अ स्टेटमेंट, या बुक में कोई स्टेटमेंट गिवन है,
आपने देखा होगा सो एंड सो स्टेटमेंट एंड लेट्स जस्ट से 2002 ऐसे मेंशन रहता है, ठीक है। तो यू, हाउ डू यू इनकॉर्पोरेट दैट इन योर आंसर, यू राइट दैट स्टेटमेंट एंड इन योर ब्रैकेट्स यू राइट दिस, ठीक है। अनदर वे वुड बी निमिषा श्रीवास्तव 2002 कोट अनकोट ऐसे करके, ठीक है। बट जो भी मैंने ब्रैकेट वाला बताया वो दैट इज मोर ऑफ द मेथड ऑफ कोटिंग द स्टडी। ये जो क्वेश्चंस आते हैं ना, कोट अ स्टडी, गिव एन एविडेंस, दिस इज व्हाट इट मींस, उसमें आपको एग्जांपल्स नहीं बताने होते हैं, आपको किसी की रिसर्च का स्टेटमेंट देना होता है, ओके। सो इंक्लूड दैट, यू विल नॉट बिलीव कितना आंसर आपका अपलिफ्ट हो जाता है। सिंपल डायग्राम्स बना सकते हो, कभी कभी हो सकता है कंटेंट में यू विल नॉट गेट दी डायग्राम्स, गेट इनटू द हैबिट ऑफ मेकिंग कांस्टेंट फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स जहां पे भी पॉसिबल है। It looks very good also, it looks very eye pleasing also, and yes you have to remember the year, at least कुछ very basic important studies के तो याद करने ही करने पड़ेंगे, राइट। व्हाट इज इंटेलिजेंस, किसने कौन सी थ्योरीज दी थी, किस ईयर में दी थी, ये सब आपको याद करना है, तो ये आपके नोट्स में होना चाहिए, जितनी बार आप उसको देखोगे आपको उतनी बार याद आएगा, राइट। सो आंसर्स या अपने नोट्स भी इसी हैबिट में आ जाओ कि पॉइंटर्स में लिखो, राइट, इन पॉइंटर्स लाइक दिस, जैसे मैंने मेंशन किया है, एंड आप उसको या तो नंबर्स में कर दो, एंड ऑफ कोर्स ईयर्स एंड डायग्राम्स एंड सो एंड सो फोर्थ। आप खुद देखो, अभी मैं यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट कर रही हूँ, लेट्स जस्ट से अगर ये पैराग्राफ फॉर्म में ही होता, आई एम श्योर इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू, सो इट्स ऑल साइकोलॉजी इन दी एंड। हमने क्यों इसको ऐसे स्ट्रक्चर्ड किया है कि अगर कोई पढ़े तो उसको बड़ा इजी लगे कि अरे 10 नंबर का क्वेश्चन, इतने पॉइंट्स लिखे हैं, चलो इतने तो मैं दे ही देता हूँ पढ़ के, है ना। अंडरलाइन करना है, हेडर्स जो है बहुत स्ट्राइकिंग होने चाहिए आपके, सो एंड सो फोर्थ। कुछ भी टॉपिक है, कुछ है, यूज द कंटेंट, लेट्स से कंटेंट इज गोइंग टू बी द सेम, सो फॉर एग्जांपल कॉग्निटिव साइकोलॉजी का जितना थ्योरी है वो सेम ही रहेगा, है ना, थ्रू आउट द इयर्स और फॉर इयर्स टू कम। हाउ डू यू मेक इट अ डायनेमिक आंसर, लेट्स जस्ट से पेपर 2 में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया है जो आपको पता ही नहीं कहाँ से आंसर करना है, बट आपको पता है कि ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, use that content from paper 1, mold your answer and then write. Sometimes you get very good bullet points किसी और टॉपिक का, बट आप किसी और में भी लिख सकते हो, जस्ट यू हैव टू चेंज द कीवर्ड, सो इट्स ऑल प्रेजेंस ऑफ माइंड आल्सो। तो बी वेरी फ्लेक्सिबल, बी वेरी प्लास्टिक, देयर इज अ टॉपिक हम प्लास्टिसिटी करेंगे अभी, तो प्लास्टिसिटी मीन्स यू हैव टू मोल्ड योरसेल्फ अकॉर्डिंगली, राइट, बिकॉज you know you're not going to, like I'm saying, you're not going to get content for everything, कुछ ऐसा होगा कि किसी और टॉपिक का बड़ा अच्छा पॉइंट्स लिखा है, बट इट इज अप्लाइंग फॉर दैट ऑल्सो, तो आप क्या कर सकते हो, कीवर्ड चेंज करके वही टॉपिक्स उठा सकते हो। सो डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ कि ये बस यूनिट 1 का कंटेंट है, दिस इज ओनली फॉर यूनिट 2, दिस इज ओनली फॉर यूनिट 3, होलिस्टिकली यूज ऑल द कंटेंट, okay, and of course it has a lot of applications in your ethics paper also, so please prepare accordingly कि आपका एथिक्स में भी कुछ कुछ यूज आ जाएगा, वैल्यूज, बिलीफ सिस्टम, इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो वो आपका वहां पे भी यूज आएगा, ठीक है। आंसर राइटिंग लाइक आई एम सेइंग, थोड़ा सा कंप्लीट होने दो नोट्स, उसके बाद स्टार्ट करना। जिन लोगों ने ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, यू आर मोर देन वेलकम, बट स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग जस्ट नाउ, मैं उनके लिए बोल रही हूँ ये चीज, ठीक है। नाउ वन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, answer writings are very subjective, answers are subjective, it can be that you hold a different opinion and it can be that I hold a different opinion, you can always support your answer with some evidence and some theory, अगर आपको लग रहा है you have the enough example, you have the enough idea, you are most welcome to give your views, some questions are like that, बट व्हेन आई से राइट और रॉन्ग नहीं होते, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपने जो स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है उसका ही कुछ गलत लिख दिया है, नो, देन ऑफ कोर्स इट्स रॉन्ग। सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज साइकोलॉजी, यू आर गिविंग मी डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री, देन इट्स रॉन्ग, है ना। जहां पे भी आपको ओपिनियंस देनी है, यू आर मोर देन वेलकम टू गिव योर ओपिनियंस, given that you supported with some evidence, some example, ठीक है। सो देयर इज नथिंग लाइक रॉन्ग एंड राइट, या हम कई बार टेम्पलेट आंसर्स देखते हैं, मॉक आंसर्स देखते हैं ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑफ द एस्पिरेंट्स, इट्स गुड, you get an idea कि what can be written, but just don't blindly copy। आंसर राइटिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आपने किसी का कंटेंट कॉपी करके वही लिख दिया है, दैट इज नॉट आंसर राइटिंग, यू विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस इन दी पेपर, है ना। इट शुड कम from within, that you are able to structure your answer, you are able to write that answer, so don't blindly copy कि यहाँ से मैंने कॉपी कर दिया, या मैंने इंटरनेट से यहाँ से आई सी स्टूडेंट्स डूइंग दैट, कि डायग्राम के साथ सब कुछ जो होता है वो सारा कॉपी कर देते हैं, थिंकिंग कि इससे बेटर क्या मिलेगा,
बट नो, इट शुड बी इन योर वर्ड्स, इट शुड बी योर स्टाइल, इट शुड रिफ्लेक्ट कि ये आपका पर्सनलाइज आंसर है ना. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आई वांटेड यू टू रिमेम्बर. ओके, नाउ फॉर बुक लिस्ट अभी मैं आपको सिर्फ पेपर वन के लिए बता रही हूँ. फॉर जनरल साइकोलॉजी, एक तो आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे. फॉर जनरल साइकोलॉजी द वेरी फेमस, यू नो, देयर इज सिसरेली एंड बैरन. बट कुछ टॉपिक्स मैंने देखे हैं कि बैरन में नहीं है, सिसरेली में है. सो इट इज योर चॉइस. जो भी लैंग्वेज आपको यूज होती है, आई पर्सनली यूज सिसरेली. यूज इन द सेंस आई रिकमेंड सिसरेली बिकॉज उसकी लैंग्वेज मुझे अच्छी लगती है. आप दोनों को देख लीजिए आपको कौन सी अच्छी लग रही है. जो टॉपिक्स बैरन में नहीं है वो आप सिसरेली से कॉपी कर लीजिए या लिख लीजिए. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर फ्यू अदर बुक्स ऑल्सो. there's Morgan and King. there's also Passer and Smith. ठीक है. आई विल फॉरवर्ड इट टू यू. मैं सारी आपको